भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करे भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करे भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करे विषय छड़िया शेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छड़िया शेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छड़िया शेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि परम करुण प्रभु दुई जन निताय गौर चंद्रा देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ये मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ये मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ये मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ये मन दयाल दाता पशु फकी झोरे पाषाण विधारे सुनी जरा गुण गाता पशु पक्षी झोरे पाषाण विधारे सुनी जरा गुण गाथा पशु पक्षी झोरे पाषाण विधारे सुनी जरा गुण गाथा परम करुण प्रभु दुई जन निताय गौर चंद्रा संसारे मजिया रोहिले फोड़िया से पद नहीं लो आशा संसारे मजिया रोहिले फोड़िया से पद नहीं लो आशा अपन करामा भुंजायो समान कोहे लोचन दासा अपन करामा भुंजायो समान
kohe lochana dasa. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of Shravana and Kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. Purport: to live with devotees or to live in a temple means to associate with the Shravana Kirtana process. Sometimes neophyte devotees think that they can continue the Shravan Kirtan process without worshipping the deity, but the execution of such Shravan Kirtan is meant for highly developed devotees like Haridas Thakur, who engage in the Shravan Kirtan process without worshipping the deity. However, one should not falsely imitate Haridas Thakur and abandon deity worship just to try to engage in Shravana Kirtan. This is not possible for neophyte devotees. The word Guru Prasada indicates that the spiritual master is very merciful in bestowing the boon of devotional service upon the disciple. That is the best possible gift the spiritual master has to offer. Those with a background of pious life are eligible to receive life's supreme benefit. And to bestow this benefit, the Supreme Personality of Godhead sends His representative to impart His mercy. Endowed with the mercy of the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master distributes the mercy to those who are elevated and pious. Thus, the spiritual master trains his disciples to render devotional service unto the Supreme Personality of Godhead. This is called Guru Krupa. It is Krishna Prasada, Krishna's mercy, that he sends a bona fide spiritual master to the deserving disciple. By the mercy of Krishna, one meets the bona fide spiritual master, and by the mercy of the spiritual master, the disciple is fully trained in the devotional service of the Lord. Bhakti Lata Bija means the seed of devotional service. Everything has an original cause or seed. For any idea, program, plan, or device, there is first of all the contemplation of the plan, and that is called Bija or the seed. The methods, rules, and regulations by which one is perfectly trained in devotional service constitute the Bhakti Lata Bij or seed of devotional service. This Bhakti Lata Bij is received from the spiritual master by the grace of Krishna. Other seeds called Anya Abhilasha Bij include Karma Bij, Jnana Bij. If one is not fortunate enough to receive the Bhakti Lata Bij from the spiritual master, he instead cultivates such seeds as Karma Bij, Jnana Bij, or political, social, or philanthropic Bijas. However, the Bhakti Lata Bij is different from these other Bijas. The Bhakti Lata Bij can be received only through the mercy of the spiritual master. Therefore, one has to satisfy the spiritual master to get the Bhakti Lata Bij. Yasya prasadat bhagavat prasadaha. The Bhakti Lata Bij is the origin of devotional service. Unless one satisfies the spiritual master, he gets the Bija or root cause of karma, jnana, and yoga without the benefit of devotional service. But one who is faithful to his spiritual master gets the Bhakti Lata Bij. This Bhakti Lata Bij is received when one is initiated by the bona fide spiritual master. After receiving the spiritual master's mercy, one must repeat his instructions, and this is called Shravana Kirtan, hearing and chanting. One who has not properly heard from the spiritual master and who does not follow the regulative principles is not fit for chanting. This is explained in the Bhagavad Gita, Vyavasayatmak buddhir ekeha kuranandana. One who has not listened carefully to the instructions of the spiritual master is unfit for chanting or for preaching the cult of devotional service. One has to water the Bhakti Lata Bij after receiving instructions from the spiritual master. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunadhanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। आज हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। वैसा आप सभी काफ़ी समय से जप कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से मैं बताऊंगा फिर। हाँ हाँ, वैसा अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन होकर वापस लौट रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी इच्छा था वृंदावन जाने का। पहली बार प्रयास किया, राम केली तक जा पाया, फिर वापस लौट गया। और जगन्नाथपुरी पहुंचने के उपरांत फिर कुछ दिन रहा, फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मुझे वृंदावन जाना है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से वृंदावन जाने की इच्छा पुनः व्यक्त की, एंड फिर चैतन्य महाप्रभु खास करके स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य से उन्होंने चर्चा की, देखी इस प्रकार से मुझे वृंदावन जाने की बहुत इच्छा हो रही है। देन फिर उन लोगों ने कहा कि महाप्रभु आपको तो हम कैसे ही मना कर पाएंगे, आप तो पूर्ण स्वतंत्र हो। हालांकि आपको हमसे किसी प्रकार से पूछने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी आप हम आपकी भक्तों के प्रति प्रेम है जिसके कारण आप हमसे पूछ रहे हैं करके कहते हुए स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे आग्रह करते हैं कि महाप्रभु ठीक है, आप जा सकते हो, जा सकते तो है ही, आप जाएंगे ही, हम कहाँ रोक पाएंगे आप। बट हमारे बस यही आग्रह है, आप केवल ये अभी जो बारिश का मौसम चल रहे हैं, तो इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए सुगम नहीं होता है, तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ये बारिश के मौसम बीतने के बाद आप चलना। इस प्रकार से कहने पे दिन फिर उसके उपरांत बारिश के मौसम बीतने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान किए थे। इस बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखिए इस बार मैं अपने साथ किसी को भी नहीं ले जाऊंगा, किसी को भी, क्योंकि पिछली बार तो सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया ना कि महाप्रभु आप इस प्रकार से इतने हजारों लाखों लोगों के साथ कोई वृंदावन नहीं जाया जाता है, ये ठीक प्रकार नहीं है वृंदावन जाने का, अकेला जाना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं ले जाने वाला। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप कहा कि नहीं नहीं महाप्रभु, आप अकेला कैसे जा पाएंगे, आपके वस्त्र को पकड़ने के लिए कोई तो हो, नहीं तो आप ही को अगर वस्त्र पकड़ना हो और पानी का कमंडलू भी पकड़ना हो, तो फिर आपकी नाम जब कैसे हो पाएगा, आप नाम संख्या को कैसे गिन पाएंगे। तो इसलिए कम से कम एक व्यक्ति को तो आप अपने साथ रखो ही, जो कि आपकी वस्त्र और कमंडलू पकड़ेगा, जिससे आप अपने हाथों उंगलियों पे आप भगवान नाम की जाप आप गिन सकते हो। इस प्रकार से कहने पे तो महाप्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक ऐसा ब्राह्मण दो जो कि मुझे नहीं जानता हो। बट फिर भी ऐसा कौन है जो कि महाप्रभु को नहीं जानता हो। देन फिर कैसे तैसे इन लोगों ने ढूंढा, एक अच्छा ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य को ढूंढ कर ले आया। फिर बलभद्र भट्टाचार्य के साथ उनको भी एक असिस्टेंट दिया गया था, कृष्णदास करके। तो इस प्रकार से ये दो लोग जो है, बलभद्र भट्टाचार्य और दूसरा कृष्णदास, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के संग में वृंदावन के लिए प्रस्थान करने की सौभाग्य उन दोनों को प्राप्त हुई। तभी चैतन्य महाप्रभु इस बार तो इस बंगाल की ओर नहीं गया,
क्योंकि पिछली बार तो पता चला कि क्या होता है बंगाल जाने पे। तो इस बार बंगाल की ओर नहीं गए, इस बार झारखंड के जंगल से फिर गए थे। एंड झारखंड के जंगल में क्या क्या होता है आप लोगों ने देखा ही है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के प्रभाव से किस प्रकार से हाथी आकर नाचने लगी, शेर आकर हिरणों के साथ नाचने लगा, सांप भी नाचने लगा, और फिर वहाँ पर जितने भी जानवर थे और फिर हिरण इत्यादि आकर भगवान को बहुत प्रेम से निहारने लगी, और फिर गाय इत्यादि आकर भगवान को चाटने लगी। तो इस प्रकार से अनेक जीव जंतुओं के साथ अपना प्रेम की आदान प्रदान करते हुए चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंद के साथ कीर्तन करते हुए नाचते हुए झारखंड के जंगल से गुजरे और आगे बढ़कर प्रयाग पहुँचे थे। फिर प्रयाग से वाराणसी पहुँचे, फिर वहाँ से आगे वृंदावन पहुँच गए थे। फिर मथुरा होकर वृंदावन गए थे। फिर सबसे पहले विश्राम घाट गए थे, फिर विश्राम घाट से फिर आगे बढ़े थे वृंदावन की ओर। तो उस वृंदावन पहुंचने के उपरांत वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं को कोई रोक ही नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु को अगर चैतन्य महाप्रभु की अवस्था ऐसा था कि जैसा चैतन्य महाप्रभु कोई भी मतलब कोई भी नदी वदी दिखाई पड़ता तो उनको तुरंत ही यमुना की याद आ जाती थी, एंड फिर तुरंत यमुना में कूद कर देन फिर वो नहाने लग जाते थे और उसमें लौट पौट करने लग जाते थे। तो वैसा भावनाओं में हमेशा ही डूबा हुआ रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसा जो चैतन्य महाप्रभु अगर वृंदावन ही सीधा पहुंच जाए देन फिर महाप्रभु को कौन रोक सकता है, और महाप्रभु भावनाओं का क्या सीमा ही रहेगा। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसा चैतन्य महाप्रभु मथुरा पहुंचे थे वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की भाव जो है वो 100 गुना अधिक हो, 1000 गुना अधिक हो गया था। केवल मथुरा का वृंदावन के चिंतन करने मात्र से ही उनके 100 गुना भाव बढ़ जाता है। और फिर मथुरा में पहुंच गया तो 1000 गुना भाव बढ़ गया। फिर मथुरा से आगे जैसा चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर आगे बढ़े थे, फिर वृंदावन पहुंच गए थे। वृंदावन को पहुंचते ही चैतन्य महाप्रभु की भाव जो है लाखों करोड़ों गुना बढ़ चुकी थी। एंड वैसा चैतन्य महाप्रभु जिनकी भाव इस प्रकार से लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है तो फिर वैसा महाप्रभु की भावों के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मेरा शक्ति सामर्थ्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन के अंतर्गत एक क्षण में अनुभूति को व्याख्या करने के लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको एक सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। इसी से आप लोग समझ लेना कि चैतन्य महाप्रभु की क्या अवस्था थी वृंदावन में। इस प्रकार से कहते हुए वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं फिर इसके उपरांत वृंदावन में अनेक मतलब पूरा 12 वनों की चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हैं, 12 वनों की यात्रा करते हैं। एंड फिर यात्रा करने के उपरांत गोवर्धन भी आते हैं, फिर गोवर्धन पे भी महाप्रभु यात्रा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। वहाँ पर पहले मानसी गंगा पे ही महाप्रभु विश्राम करते हैं, फिर अगले दिन सुबह जो है मानसी गंगा में नहाकर फिर वहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं। एंड गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त वही विख्यात श्लोका महाप्रभु निरंतर जाप करते हुए, निरंतर गाते हुए, नाचते हुए महाप्रभु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हंताय मद्दिर हबला हरिदास वर्यमानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानी असूयवस कंदर कंदमूलैहि। तो ये श्लोका की उच्चारण करते हुए महाप्रभु पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु मथुरा में ही वहाँ पर एक सनोडिया ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है। एंड सनोडिया ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के विषय में पहले से ही जानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी सनोडिया ब्राह्मण से आकर्षित हो जाते हैं। सनोडिया ब्राह्मण जो है वो कीर्तन करते हुए नाच रहे होते जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए थे। देन फिर सनोडिया ब्राह्मण के साथ परिचय होता है। फिर सनोडिया ब्राह्मण से पूछते हैं आप
कहाँ से हो, निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं संबंध माधवेंद्रपुरी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा, नहीं तो इस प्रकार की प्रेम के लक्षण आपके अंदर प्रकट नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से कहने पर सनोडिया ब्राह्मण कहते, सही आपने पकड़ लिया, हम हमारे संबंध माधवेंद्रपुरी के साथ है और हम माधवेंद्रपुरी का ही शिष्यों का शिष्य है। इस प्रकार से कहने पे महाप्रभु ने आलिंगन करते हैं। फिर उसके उपरांत से तब से लेकर वृंदावन छोड़ने तक भी, वृंदावन के बाद भी, ये सनोडिया ब्राह्मण कभी भी चैतन्य महाप्रभु संघ को छोड़ा नहीं। एंड फिर सनोडिया ब्राह्मण साथ ही साथ चल पड़े थे। एंड जब चैतन्य महाप्रभु, ये सनोडिया ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के आगमन की प्रचार जो है खूब अच्छा किया था। मथुरा वृंदावन में जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के समाज था, फिर वहाँ जो है जा जाकर सभी लोगों को बताया करते थे कि इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हुआ वृंदावन करके। एंड सभी सारा ब्रजवासियों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ही पुनः ब्रज में प्रकट हो गया हो। तो उस प्रकार से उनको आनंद में डूब रहे थे सभी के सभी। एंड फिर ऐसा आनंद पारवश के साथ फिर सभी के सभी चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का अपने घर पे प्रसादन के लिए आमंत्रण करने का। तो इस प्रकार से हर कोई चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते थे और चैतन्य महाप्रभु से आग्रह करते थे, देखिए आज हमारे घर पे आप प्रसाद ग्रहण करने आइए करके सभी लोग पहुंचते थे। जब इस प्रकार से समाचार धीमे धीमे और फैलता गया, वैसे चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट पे रहा करते थे, अक्रूर घाट पे। एंड ताकि वो एक एकांत स्थान है करके फिर वहाँ पर रहने लगे। बाकी अन्य स्थानों में भीड़ लग जाता, तो फिर वहाँ पर पहुँच गए थे महाप्रभु। बट जैसे तैसे लोगों को पता चल गया है कि महाप्रभु अक्रूर घाट पर रह रहे हैं। एंड फिर जब एक एक दिन जो है 10 लोग महाप्रभु का आमंत्रण देने लगे, तो बलभद्र भट्टाचार्य को जो पागल हो जाते थे, अरे किन के आमंत्रण स्वीकार करे, किन को मना करे, तो फिर क्या करे। देन फिर लोग क्या करने लगे, वो सुबह सुबह ही पहुंच जाते थे, सुबह सुबह पहुंच जाते थे। जैसा मूवी टिकट के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो उस प्रकार से पहुंच जाते थे लोग, पहुंच जाते थे। एंड फिर सभी लोग बलभद्र भट्टाचार्य देखिए आज हमारा नंबर लगवाओ, हमारा नंबर लगवाओ। तो फिर किन के नंबर लगाए, किन के ना लगाए, तो फिर तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत परेशान होने लगे। एंड वो समय भी ऐसा ही होता था कि ऐसा नहीं कि वो लोग पकाकर महाप्रभु खिला सकते हैं, नहीं, बल्कि वो बलभद्र भट्टाचार्य ही हमेशा महाप्रभु के लिए पकाते हैं एंड वही खिलाते हैं। वो केवल व्यंजन देते हैं, क्या चावल इत्यादि जो कुछ भी व्यंजन लगता है, वो सारा पदार्थ जो है बलभद्र भट्टाचार्य को देने पे बलभद्र भट्टाचार्य जो है उसको पकाकर उनको खिलाते हैं महाप्रभु को। तो इस प्रकार से होता था। देन फिर एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य जब बहुत ही परेशान हो गए तो महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु से कहा, देखिए महाप्रभु हमसे नहीं हो पाएगी, हमसे ये सेक्रेटरी वाला सेवा नहीं हो पाएगी, ये लोग तुम मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। इतने सारे लोग अगर आमंत्रण करने के लिए आ जाए, वो भी सुबह सुबह पहुंच जाए, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, इन सभी लोगों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। आप बताइए कि मुझे लगता है कि अभी वृंदावन से बाहर जाने के समय आ गया, वृंदावन से बाहर जाने के समय आ गया, अभी हमें वृंदावन से बाहर जाना होगा। देन फिर महाप्रभु ने अपने सेवक की परेशानी देखकर महाप्रभु ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इतने ही परेशान हो रहे हैं, देन फिर कोई बात नहीं, हम वृंदावन से बाहर चलते हैं। देन बालभद्र भट्टाचार्य और सनोडिया ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाप्रभु अभी वैसा ये इसी समय जो है त्रिवेणी संगम में नहाने की बहुत बड़ा महिमा है, तो हम लोग सभी त्रिवेणी संगम चलते हैं, फिर वहां पर नहाएंगे, तो फिर वहां चलते हैं करके। देन फिर सनोडिया ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हमें रास्ता पता है, हम ले चलेंगे आपको, हमें जाने दीजिए आपके साथ। देन फिर सनोडिया ब्राह्मण और एक और मथुरा से एक और ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ चले। और चैतन्य महाप्रभु का 2 सेवक थे ना, एक तो बलभद्र भट्टाचार्य, दूसरा कौन है, कृष्णदास। ये बलभद्र भट्टाचार्य, कृष्णदास, सनोडिया ब्राह्मण और एक और ब्राह्मण, इस प्रकार से ये 4 लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ
चल पड़े थे कहाँ के लिए? त्रिवेणी संगम प्रयागराज के लिए चल पड़े थे। एंड आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं? गंगा नदी की तट से वो लोग जा रहे थे, क्योंकि सनड़ ब्राह्मण ने कहा, महाप्रभु आप गंगा नदी के तट से चलेंगे तो खूब आनंद आएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आपको खूब अच्छा आनंद आएगा, तो आप गंगा नदी के तट से मैं ले चलता हूँ, चलिए करके। देन फिर महाप्रभु गंगा नदी के तट से महाप्रभु को बाकी लोगों को ले चलने लगे थे। देन फिर इस प्रकार से जब वैसा चलते थे, देन फिर महाप्रभु जो है वो अपने भाव में नाचते गाते, कभी घिरते पड़ते रोते हंसते वो चलते थे। एंड पीछे से इन 4 लोगों को महाप्रभु को संभालने की काम होता था। तो ये लोग कैसे तैसे महाप्रभु को संभाल कर ले चलते थे, तो इसी प्रकार से चलते चलते थे। तो एक समय पर क्या हुआ कि महाप्रभु मतलब अपनी भावनाओं में ऐसा डूब गए थे, ऐसा खो गए थे कि महाप्रभु कीर्तन करते 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 वो गिर गए थे, बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़े थे, और यहाँ तक भी महाप्रभु का सांस भी रुक गया था। इस बार तो सांस भी चलना रुक गया था। देन फिर क्या करे? जिस व्यक्ति का सांस ही रुक जाते तो फिर करे क्या? देन फिर ये 4 लोग महाप्रभु की सामने बैठ गए थे। देन फिर सोच रहे थे अभी महाप्रभु जगाए कैसे जाए। तो इतने में एक ऐसा घटना हुई कि उस समय तो सारा मुस्लिमों की राज्य था, हर जगह ही। देन फिर 4 मुस्लिम ओडिशे की सैनिक जो है वो लोग घोड़े में सवार होकर चलते चलते वो लोग उस स्थान पर पहुंच गए। एंड फिर उन लोगों ने इस दृश्य को देखा। एक व्यक्ति लेटा हुआ था, बिल्कुल उनमें किसी भी प्रकार का चलन नहीं है, एंड 4 लोग उनके चारों ओर बैठे हुए थे। इस प्रकार के दृश्य देखकर इन सैनिकों को अनुमान आया, क्योंकि मतलब ये तो पोलिश की टाइप के लोग हैं, उनकी हमेशा बुद्धि जो है टेढ़ा ही घूमता है। तो ये लोग इस प्रकार से सोचने लगे, इसका मतलब ये जो व्यक्ति है जो लेटा हुआ है ये बहुत धनवान व्यक्ति है, जो कि खूब सारा धन लेकर आ रहा था, एंड ये 4 लोग मिलकर इनको मार दिया। ये 4 लोग मिलकर इनको मार दिया, और मारकर अभी धन को बांटने में लगे हैं। ऐसा 4 लोगों को हमें ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, इनको तो हमें गिरफ्तार करनी चाहिए करके सोचकर ये 4 लोग वहां पर पहुंचकर फिर क्या है कि अरेस्ट। तो उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमें क्या अरेस्ट करेंगे आप। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने इनको मार दिया हुआ है, तो वैसा किया करके उनको खूब निंदा करते फिर उनको अरेस्ट कर दिए, 4 को अरेस्ट कर दिया। इतने में ये दोनों तो बेचारे, ये तो बलभद्र भट्टाचार्य और उनकी सेवक तो कृष्णदास, ये लोग तो वैसे ही बंगाल से आ रहे थे, उनको इस प्रकार के मुस्लिमों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना उनको तो पता नहीं है। तो इनके हाथ पैर कांपने लगा, तो बेचारे कांप रहे थे। एंड फिर बाकी दोनों तो वो तो इसी प्रदेश से थे, तो उनको तो पता था कि किस प्रकार से मुस्लिमों के साथ डील करनी चाहिए। देन फिर वो लोग कहने लगे, देखिए हमने इस प्रकार से किया नहीं है,
हम वैसा, ये मथुरा का ही, इस मथुरा से ही है, हम मथुरा का ही ब्राह्मण है, इस प्रकार से वो अपना परिचय इत्यादि देने लगे। फिर भी ये चारों लोग जो है मान नहीं रहते। हम कैसे मान सकते हैं इस बात से? आप लोगों ने मतलब देखिए, व्यक्ति तो मरा हुआ है, देखिए उनका सांस भी नहीं चल रहा है, तो ऐसा स्थिति में आप लोगों ने मतलब इस व्यक्ति को लाए, इसकी क्या कारण होगा? आप लोग ने ही मार दिया करके देन फिर इस प्रकार से कहने लगे। देन फिर उनको समझ नहीं आ रहा था भाई कैसे समझाए, क्या करें इनके साथ। अभी तो ये लोग, फिर ये चार पठान लोग, तो ये लोग कहने लगे इन चारों को तो हमें जान से मार देना है, इनको अरेस्ट भी नहीं करना। तो ये बात सुनकर तो वैसे ही कांप रहे थे, तो वैसे ही और ज्यादा कांपने लगे। तो फिर क्या हो, फिर अभी क्या करे महाप्रभु? तो अगर महाप्रभु जब तक अगर खुलकर मतलब बोलेंगे नहीं, तब तक तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अब महाप्रभु तो बिल्कुल सांस भी नहीं चल रहा, वैसे ही लेटा हो, फिर करे क्या? तो फिर ये लोग सोच रहे थे क्या करे क्या करे क्या करे। इतने में भगवान कृपा से महाप्रभु को होश आ गया और महाप्रभु जग गए। और महाप्रभु जग गए, फिर महाप्रभु उठकर देन देखा ये चारों सैनिक वहां पर खड़े थे, इन चारों को बंदी बना दिया हुआ था। देन फिर महाप्रभु उनको समझाए, देखिए आप लोग जिस प्रकार से सोच रहे हो वैसा ठीक नहीं है, बल्कि ऐसा वैसा है करके उनको चारों को समझाया हुआ था। देन फिर उन चारों में से ही एक मुस्लिम था, वो कुरान में बहुत ही बड़ा पंडित था, कुरान में ही बहुत बड़ा पंडित था। देन फिर वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कुरान के विषय में वो चर्चा करने लगे, कुरान के विषय में चर्चा करने लगे। देन फिर महाप्रभु कुरान से ही कोट करके उनको समझाए थे किस प्रकार से कुरान के अंतर्गत भी भगवान के साकार रूप को स्वीकार किया जाता है। कुरान का भी यही निष्कर्ष है कि भगवान साकार है, भगवान को रूप है, सुंदर रूप है। आप लोग कुरान को समझते नहीं हैं, जिसके कारण आप भगवान के साकार रूप को तिरस्कार करते हो। बल्कि ये बात नहीं है, बल्कि कुरान का भी यही निष्कर्ष है कि भगवान के साकार रूप है, हम साकार रूप की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से कहते हुए उनसे भगवान के नाम संकीर्तन कराने लगे। भगवान के नाम संकीर्तन उनसे कराने लगे। एंड फिर नाम कराते कराते फिर क्या हुआ, ये चारों लोग जो है फिर ये लोग भी नाचने लगे। एंड फिर ऐसा प्रभावित हुए थे चेतन महाप्रभु की इस कीर्तन से और चेतन महाप्रभु की प्रचार से, ऐसा प्रभावित हुए थे कि ये चार लोग जो है फिर निश्चय कर लिया, वापस हम राजा के पास जाएंगे नहीं, वापस हम जाएंगे नहीं, हम यही से हम चैतन्य महाप्रभु की संदेश के प्रचार प्रसार करने निकलेंगे करके वो चारों लोग जो है उस दिन से पठान वैष्णव के रूप में they were known later on as पठान वैष्णवास। उस नाम से सभी लोग उनको जानते थे, पठान वैष्णवों के रूप में। देन फिर वो लोग जगह जगह जाकर चैतन्य महाप्रभु की महत्व के विषय में कहते हुए, नाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार करते हुए फिर वो जगह जगह घूमने लगे थे। तो इस प्रकार से केवल थोड़ी ही देर के लिए चारों मुस्लिमों को चैतन्य महाप्रभु संग मिला, उतने ही संगति से ये लोग ऐसा प्रभावित हो पड़े थे कि फिर वो चारों वैष्णव बन गए, प्रचारक बन गए, चैतन्य महाप्रभु को प्रचार प्रसार करने लग गए थे। तो ऐसा बहुत ही अद्भुत घटना हुई उस वहाँ पर। एंड फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु बाकी चार लोगों के साथ आगे बढ़े, तो फिर फाइनली पहुंच गए थे प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचे थे। उतने में उतने में दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर रूप और सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीनों निकलना चाह रहे थे। सनातन गोस्वामी को लगा कि नहीं, अभी राजा जो है मेरे से बहुत ही अत्यंत आसक्त है और मेरे ऊपर ज़्यादा निर्भर है, अगर मैं छोड़कर जाऊंगा तो कुछ और दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, आप दोनों जाओ करके रूप गोस्वामी और अनुपम जो है ये दोनों निकल पड़े थे।
तो फिर रूप गोस्वामी ने संदेश भेज दिया सनातन गोस्वामी को, देखिए मैं ढेर सारा रूप गोस्वामी ने काफी सारा संपत्ति जो है अपने नावों में ले जाकर वहां पर ब्राह्मणों को वगैरह बांट दिया था। ब्राह्मणों को वगैरह बांट दिया। वहां पर बताया जाता है 50% जो है वो उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया, 25% जो है अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और 25% जो है वो अपने इमरजेंसी के लिए रखे थे। एंड फिर उसी में से ही थोड़ा सा धन, मतलब वो वही धन जो है उन्होंने एक वैश्य के पास उन्होंने रखा। इन पर सनातन गोस्वामी को संदेश भिजवा दिया, देखिए इस प्रकार से इतना मात्रा में मैंने धन जो है इस वैश्य के पास रख दिया, आपको जब आपको आगे जाकर हो सकता है इस धन की जरूरत पड़े, इस धन की जरूरत पड़े, इसलिए मैं रख रहा हूँ करके फिर वो संदेश भेजकर फिर रूप गोस्वामी और अनुपम निकल पड़े थे, कहाँ के लिए? चैतन्य महाप्रभु से मिलने वृंदावन के लिए निकल पड़े थे। एंड फिर जाते जाते ये लोग भी धीमे धीमे प्रयागराज पहुंच गए थे। एंड फिर उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी प्रयाग पहुंचे हुए थे। प्रयाग पहुंचे हुए थे, वहां पर बिंदु माधव मंदिर है। बिंदु माधव मंदिर है। आप लोग जो भी प्रयागराज गए होंगे, बिंदु माधव मंदिर का दर्शन, बिंदु माधव जी का दर्शन किए होंगे। वहाँ पर बिंदु माधव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए थे। एंड खूब सुंदर कीर्तन करते हुए, नाचते हुए बिंदु माधव की सेवा महाप्रभु ने की। फिर उसी समय काफ़ी भीड़ लग गया था। एंड फिर उसी समय ही ये रूप और अनुपम जो है दोनों प्रयागराज में पहुंचे हुए थे। जैसे उन लोगों को पता चला बिंदु माधव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु है, तो फिर दोनों भी वहाँ पर पहुंच गए थे। दोनों भी वहाँ पर पहुंच गया। देन फिर भीड़ में बिल्कुल पीछे होकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके जैसा चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुई, तुरंत ये दोनों साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर दूर से ही महाप्रभु ने पहचान लिया कि अच्छा रूप और अनुपम आए हुए हैं करके, तुरंत भीड़ को हटाते हुए महाप्रभु उन दोनों के पास पहुंचते हैं। फिर उन दोनों को महाप्रभु आलिंगन देते हैं। एंड फिर ये लोग जो है बारंबार महाप्रभु को प्रणाम करने लगे थे, बारंबार प्रणाम करने लगे। ऐसे आप देख सकते हैं, जब ध्रुव महाराज जी को भी जब भगवान की प्राकट्य साक्षात दर्शन हुई, बारंबार प्रणाम करने लगे, एक बार नहीं। उसी प्रकार से अनेक संदर्भों में भक्त जब भगवान की दर्शन प्राप्त करने के उपरांत ऐसा अद्भुत पारवश्य में डूब जाते हैं कि वो बार बार प्रणाम करने की इच्छा उनके मन में आता है, तो बार बार करते। तो यहाँ पर भी बार बार कर रहे थे। देन उसके उपरांत ही फिर जैसा प्रयागराज में महाप्रभु के आगमन की वार्ता वल्लभाचार्य को पता चला, तो फिर वल्लभाचार्य भी दौड़े भागे महाप्रभु की संग पाने के लिए महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुंचे थे। फिर वहाँ पर महाप्रभु से वल्लभाचार्य की मुलाकात होती है। फिर दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की कथा का चर्चा करते हैं। फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य को रूप और अनुपम से परिचय कराते हैं। रूप और अनुपम से परिचय कराते हैं। एंड फिर वल्लभाचार्य जो है उन दोनों से वल्लभाचार्य जो है फिर उन दोनों से मिलने के लिए वो उनके पास जाते हैं। अभी तक बैठे हुए थे, अभी खड़े होकर फिर उन दोनों के पास गए थे। और उन दोनों के पास जाने पे ही ये दोनों भागे थे। ये दोनों भाग गए थे, फिर दूर जाकर खड़े हो गए। तो फिर आप सोचे कि अगर आप किसी से मिलने जाते हो, वो भाग जाए, तो फिर वल्लभाचार्य को पता नहीं जा रहा ये क्या हुआ, ये तो भागे, ये क्या हो गया करके। तो फिर सोच रहे थे। देन फिर उन दोनों ने कहा देखिए हम अत्यंत नीच हैं और नीच प्रवृत्ति के हैं, तो हम जैसा लोगों की स्पर्श आप जैसा लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप जैसा लोगों को नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमारी स्पर्श आपको ना हो, इसलिए हम आपसे दूर ही रहना चाहते हैं, इसलिए हम दूर चले गए थे। देन फिर वल्लभाचार्य कहते हैं महाप्रभु से कि ये दोनों इस प्रकार से नीच जाति का कैसे ही हो सकते हैं, जिनकी जिह्वा पर हरिनाम
रुकता नहीं है, जिनकी जिह्वा पर हरिनाम हमेशा चलता है, वैसा व्यक्ति जिनकी जिह्वा पर हमेशा हरिनाम रटता रहता है, तो फिर वैसा व्यक्ति नीच जाति का कैसे ही हो सकता है? कैसे ही हो सकता है? बल्कि ये अत्यंत उन्नत जाति के हैं, जाति के हैं कहते हुए वल्लभाचार्य जो है उनके निकट में जाते हैं। तो इस प्रकार से दिन फिर वल्लभाचार्य महाप्रभु को और रूप गोस्वामी को और अनुपम को अपने घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण देते हैं तब महाप्रभु रूप और अनुपम को जो है वल्लभाचार्य नाव में बिठाकर ले जा रहे होते। जब नाव में बिठाकर ले जा रहे थे, उतने में यमुना का पानी था। यमुना का पानी था और यमुना उस दिन बिल्कुल चमक भी रही थी। जब महाप्रभु को यमुना की दर्शन हुई तो फिर महाप्रभु जो है नाव में ही खड़े हो गए, नाव में ही खड़े हो गए एंड फिर खड़े होकर कूद गए थे पानी में। खड़े होकर आप सोचो, बीच नदी में अगर कूद जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर महाप्रभु कूद गए थे। फिर महाप्रभु स्विमिंग करने तो नहीं कूदे थे ना, स्विमिंग करने तो नहीं कूदे। तो फिर इन लोगों को खूब परेशानी हुई, हम ऊपर ही संभाल नहीं पाते, तो महाप्रभु तो पानी में कूद गया, अभी करे क्या? तो कैसे तैसे बहुत परेशान हो गए थे तीनों। अरे महाप्रभु क्या होगा, क्या हो जाएगी करके। तो बहुत मेहनत के बाद इन लोगों ने महाप्रभु को उठाया और फिर वापस नाव में पहुंचाया। नाव में पहुंचाने के बाद फिर महाप्रभु जो है नाव में ही शुरू हो गए, नाव में ही शुरू हो गए। फिर नाव में ही खड़े होकर फिर कूद कूद कर नाचने लगे और ऐसा नाचने लगे उनको कोई होश ही नहीं था कि क्या चल रहे क्या नहीं हो रहे हैं। देन ऐसा नाचने लगे कि फिर वो नाव जो है उतल पुतल होने लगा। एंड फिर धीमे धीमे वो नाव जो है इधर उधर होने के कारण वो धीमे धीमे वो पानी भरने लगा। और पानी भरते भरते इन लोगों की टेंशन बढ़ने लगी। अरे अभी क्या करें, पहले तो एक ही व्यक्ति डूब रहा था, अभी हम 500 लोग डूबेंगे, फिर अभी पांच ही डूब जाएंगे, फिर क्या करें? जब इस प्रकार से ये लोग और चिंता कर रहे थे, फिर अभी क्या करें? महाप्रभु तो सुनने की मूड में है ही नहीं, सुनने के मूड में नहीं है और उनका हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी क्या करें करके देन फिर ये लोग सोच ही रहे थे। देन फिर महाप्रभु ने वल्लभाचार्य की ओर देखा। फिर उनको लगा नहीं वल्लभाचार्य के सामने हमें ऐसा हमें व्यक्त नहीं करनी चाहिए करके फिर धीमे धीमे महाप्रभु कैसे तैसे अपने आप को नियंत्रण किया। देन फिर करते करते फिर शांत हुए थे। उतने में वो लोग दूसरे तट पर पहुंच गए थे। तो उस प्रकार से वहाँ पर पहुँचे। देन फिर वल्लभाचार्य महाप्रभु को अपने घर पे ले गया। फिर घर पे ले जाने के उपरांत वल्लभाचार्य महाप्रभु की चरण प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करके उस चरण जल को वो अपने परिवार के सभी लोगों की शीश पे धारण किया। सभी लोग उस चरण जल को सेवन किया। फिर उसके उपरांत बलभद्र भट्टाचार्य को सारा व्यंजन पकाने के लिए दिया गया था। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने खूब सुंदर व्यंजन बनाया। देन उसके उपरांत वल्लभाचार्य अपने परिवार के साथ मिलकर चेतन महाप्रभु ये सारा खाना परोसकर चेतन महाप्रभु की सेवा किए थे, सेवा किया। फिर उसके उपरांत चेतन महाप्रभु रूप और अनुपम गोस्वामी के साथ वापस लौट आए थे। लौट आया एंड लौटाने के बाद एक संदर्भ में जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 दिन तक विविध प्रकार की शिक्षाएं महाप्रभु देने लगे थे। एंड यही जो शिक्षाएं जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया, इन्हीं शिक्षाओं को रूप शिक्षाओं के रूप में हम जानते हैं। एंड वही चैतन्य महाप्रभु जब आगे जाकर सनातन गोस्वामी से बाद में मिलते हैं, देन सनातन शिक्षाओं को सनातन गोस्वामी को देते हैं। उन्हें सनातन शिक्षाएं कहा जाता है। इन्हीं रूप शिक्षाओं को सनातन शिक्षाओं का और रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप हुआ, इस प्रकार के जो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य जो सैद्धांतिक
वार्तालाप है। इन्हीं वार्तालापों का संगठित करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की पुस्तक को प्रस्तुत किए थे। तो ये जो भी शिक्षाएं रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिया, यही आधार बनता है आगे जाकर भक्ति रसाम सिंधु की रचना करने के लिए। जिस भक्ति रसाम सिंधु की रचना श्रील रूप गोस्वामी ने टेर कदम पे किया था, टेर कदम पे किया था, तो उस भक्ति रसाम सिंधु का आधार जो है ये शिक्षाएं बनता है। इन्हीं शिक्षाओं को देते हुए ही चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोकाएं बताई। तो मैं कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए पूरा स्टोरी मैंने बता दिया। अभी वैसे संक्षिप्त में मैं जस्ट ये श्लोका के विषय में बताकर समाप्त कर देते हैं, बिकॉज समय भी हो ही गया। वैसे कथा ही हो गया तो फिर चर्चा तो नहीं हुई। वैसे जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, दीक्षा के समय एक शिष्य को गुरु जो है ये भक्तिलता बीज प्रदत्त करते हैं। एंड व्हाट इज दिस भक्तिलता बीज? भक्तिलता बीज होता क्या है? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तिलता बीज constitutes the rules and regulations and the methods and procedures which are to be practiced in the course of devotional service. भक्ति करने के दौरान जिन नीति नियमों का पालन करना होता है, जिस विधि विधान का पालन करना होता है, ये विधि विधान को ही भक्तिलता बीज कहा जाता है। भक्तिलता बीज कहा जाता है। इस प्रकार के भक्तिलता बीज एक शिष्य को प्राप्त होता है। ये हर किसी को बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तभी इसके पहले वाला श्लोका में महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करने के उपरांत भी ऐसा कोई भाग्यवान जीव बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होता है, जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। और गुरु और कृष्ण की कृपा जिनके ऊपर होता है, उनकी कृपा के कारण ही उनको ये भक्तिलता बीज प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं इस प्रकार की भक्तिलता बीज प्राप्त हो पाना। आप सोचिए, आज के समय पर पृथ्वी पे 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़, 800 करोड़ लोग हैं। उन 800 करोड़ लोगों में से आज 50 साल की इस्कॉन की चरित्र में 60 वर्षों की इस्कॉन के प्रचार प्रसार की चरित्र में अभी तक मुश्किल से 2 से 3 लाख दीक्षित भक्त हुए हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक गिना जाए, जो लोग मर गए उनको भी गिन ले, फिर भी मतलब आप सोचिए कि 8 अरब लोगों में से 3 लाख लोगों को छूना गया है। 3 लाख लोगों को छूना गया है। हमें जब चीजें मिलता है हमें बहुत सस्ते लगने लगता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत किए बिना मिल गया था। बहुत सस्ते लगता है, बट ये सस्ते नहीं है, बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब आप सोचो 8 अरब लोगों में से अगर हमारा भारत में अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम भी इतना टफ नहीं होता, वहाँ पर भी 10 लाख लोगों में 100 लोगों को सीट मिल जाता है ना। 10 लाख लोग जब अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो उनको 100 लोगों को पास हो जाता है। कोई आईएएस बन जाएगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएफएस बनेगा, तो उस प्रकार से हो जाता है। बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर निकाला जाए तो उससे भी बहुत कम आएगा, उससे भी बहुत कम आएगा। देन आप सोचना, अगर ये तो हम केवल मनुष्यों में गिन रहे हैं, अगर सारा चराचर सृष्टि जीव राशियों को अगर गिना जाए तो कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ऐसा भाग्यवान जीव है वो व्यक्ति जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पे इस प्रकार से भक्तिलता बीज प्राप्त होता है। Because I mean it is very very important for us to understand and appreciate and acknowledge the rarity of devotion. कितना दुर्लभ है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जितना दुर्लभ है आप समझ पाएंगे ना,
उतना प्रेशियसली, उतना डेलिकेटली आप उसको संभाल पाओगे। नहीं तो ना, अगर मान लीजिए कि 10 रुपए में मोबाइल मिल जाता है, देन मोबाइल तो इधर उधर में फेंकूंगा, इधर उधर फेंकूंगा ना। अगर मेरे पास मोबाइल 1 लाख रुपए की है, देन आराम से रखूंगा, देन फिर कहीं कुछ स्क्रैच भी नहीं होने दूंगा, बिकॉज 1 लाख रुपए की है। तो उसी प्रकार से ये भक्ति लता बीज जो है बहुत ही कीमती वाली है, जो कि हमें बहुत मेहनत किए बिना, पता नहीं कौन सा ऐसा वैष्णव की, गुरुजनों की कृपा हमारे ऊपर होगी कि हमें मिल चुकी है। हमें मिल चुकी है, अभी इसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अपनी है। देन फिर आगे जाकर इसको कैसे संभाला जाए, इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताते हैं। ठीक है, बीज आरोपित, तो बीज तो मिल चुका है, इसको बीज को आरोपित करके इसको अंकुरित कैसे करे, अंकुरित करे कैसे करे, इसके विषय में महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन गजले करे सिंचन। इसको हमें श्रवण कीर्तन के जल से इसको सींचना होगा, इसको सींचना होगा। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवण कीर्तन के जल देकर इसको सींचना बहुत जरूरी है। बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी एक समय पर कहते हैं, ऑल दीज बिग बिग टेम्पल्स and big buildings, and all the rules and regulations to be followed in deity worship will only become a great burden to a devotee who stops indulging in श्रवण एंड कीर्तन। जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, अगर वो केवल सेवा में ही लगे रहते हैं, देन फिर उनको आगे जाकर ये सेवा जो है बहुत ही बोझ बन जाएगा, बहुत ही बोझ बनेगा ये जो। देन फिर प्रभुपाद कहते हैं, देन फिर आपको ये जो श्री विग्रह जो है वो आपको गलत ग्रह लगने लगेगा। गलत ग्रह मतलब गला मतलब गले। अगर आपकी गले में 20 किलो की पत्थर अगर टांग दिया जाए तो क्या कैसे लगेगा? आप फ्रीली मूव कर पाएंगे? फ्रीली अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपको लगे यार ये किसने टांग दिए यार, मतलब ये तो बहुत बेकार, इतना भारी है तो इतना है यार, कौन उसको बोझ उठाएगा, क्या है करके ऐसा लगने लगे। एग्जैक्टली उसी प्रकार की फीलिंग जो है डीटीज के प्रति आने लगेगा, डीटीज के प्रति आने लगेगा। अगर कोई ढंग से श्रवण कीर्तन किए बिना अगर केवल डीटी वर्शिप ही करेगा या केवल सेवा ही करेगा, श्रवण नहीं करता है, सुनता नहीं है, प्रचार नहीं करता है, then this is what is going to happen with him. and फिर आगे जाकर एक बार श्रील प्रभुपाद जी भी बात कहते हैं, those who do not engage in shravan and kirtan, eventually they will simply eat and sleep and die. वो केवल सोते खाते पीते मर जाएंगे जो श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो। देखिए, हालांकि हमें भक्ति लता बीज मिलने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई भी व्यक्ति बहुत ही सुपरफिशियली आर्टिफिशियली फॉलो नहीं कर पाएगा। कब तक ही आप रूल्स को रूल्स के रूप में फॉलो कर पाएंगे ना? कब तक आप अपने आप को इस प्रकार से आप लगा कर रख पाएंगे? आपको हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है। ये जो कांस्टेंट मोटिवेशन जो है आपको कहाँ से मिलेगा? भगवान के विषय में कॉन्स्टेंटली सुनने से मिलेगा। बिकॉज एज एंड व्हेन यू कीप ऑन hearing about the Lord, about hearing Bhagavatam, the purpose of following the rules and regulations will get clarified on and on. जैसा जैसा हम मतलब ये जो भागवतम चैतन्य चरितामृत के श्रवण करते जाते हैं, हम इन नीति नियमों को पालन करने का उद्देश्य में क्लैरिटी आता जाएगी। बिकॉज जैसा जैसा आपको पर्पस क्लियर होता है ना, देन वैसा वैसा आपकी डेडिकेशन, ओबीडियंस बहुत बढ़ेगा। बिकॉज सी वन लास्ट थिंग आई विश टू शेयर एंड फिनिश, टाइम हो गया कि
देखिए, आप अपना जीवन में कोई भी कार्य करना है ना, बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, फाइंड आउट व्हाई टू डू। बिकॉज जनरली लोग व्हाट टू डू में उतर जाते हैं। व्हाट के विषय में पहले पता लगाने के पहले आप पहले व्हाई प्रश्न के समाधान ढूंढो। जितना स्ट्रॉन्ग आपको इस प्रश्न के समाधान होगा, वही प्रश्न के समाधान आपके जीवन में होगा, उतने ही समर्पण के साथ आप उस व्हाट को पालन कर पाओगे। यहाँ तक भी अगर किसी को सिविल सर्विस एग्जाम भी देना है, इफ ही डज नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाई ही एक्चुअली वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, अगर उनके पास क्लैरिटी नहीं है वो क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ये गारंटी है कि वो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बिकॉज उसके लिए जो मेहनत लगता है वो कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनके अंदर कन्विक्शन ही नहीं है, उनके अंदर उस प्रकार की कन्विक्शन नहीं, श्रद्धा नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई सिंपल सिविल सर्वेंट बनने के लिए अगर व्यक्ति को इस प्रकार की कन्विक्शन की जरूरत पड़ता है, देन व्हाट टू से अबाउट बिकमिंग कृष्णा सर्वेंट। अगर भगवान श्री कृष्ण के सेवक अगर बनना है तो फिर क्या क्या करना होगा। एंड उस प्रकार की मेहनत करने के लिए जिनके पास जितना स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन रहेगा भक्ति करने के लिए, उतने ही सॉलिड भक्ति उनसे हो पाएगी। जो केवल प्रभु जी ये 10 लोग मंदिर जा रहे हैं हम भी जाते हैं करके जो पीछे पीछे जाता है तो पीछे पीछे ही रहेगा। उनके अंदर कन्विक्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ही डजंट नो व्हाई इज ही चैंटिंग। अगर आपसे अगर कोई अभी का भी पूछे कि आप भक्ति कर रहे हो क्यों, अगर आपके पास स्ट्रांग समाधान नहीं है, देन इसका मतलब आपकी भक्ति कुछ दिनों में छूट जाएगी, कुछ दिनों में छूट जाएगी। आप बहुत लंबा रेस का घोड़ा नहीं है, छूट जाएगी। अगर कोई चैलेंज करे आप भक्ति क्यों करते हो, जब करते हो ऐसा बोलना होगा जैसे व्यक्ति को लगे कि अरे ये तो 4-5 थप्पड़ मार दिए इसने, तो फिर ऐसा स्ट्रांग समाधान होना होगा। दैट मीन्स यू हैव दैट स्ट्रांग कन्विक्शन ऑफ व्हाई यू आर डूइंग व्हाट। इस प्रकार की कन्विक्शन डेवलप होगा जब साधु संतों से हम सुनेंगे, फिर भागवत की अध्ययन नियमित रूप से प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हम पढ़ते रहते हैं, देन फिर ये कन्विक्शन डेवलप होगा। जब ये कन्विक्शन के साथ जब आप नाम जप करते हो तब नाम जप अलग ही होता है, तब अलग ही होता है। जब श्रद्धा के बिना आप करते हो वो एग्जैक्टली उसी प्रकार का होता है कि जैसे गोली डाले बिना बंदूक को चला दूं, गोली डाले बिना बंदूक चलाओ, देन फिर क्या होगा, खूब आवाज आएगी, टप टप आवाज आएगी, वेन कोई घायल होगा, कोई घायल नहीं होता, कोई घायल नहीं होता। उसी प्रकार से अगर श्रद्धा के बिना बाकी भक्तिमय कार्यों का अगर हम कर भी लेते हैं, वो हमारी अनर्थों को वो निकाल नहीं पाएगी, निकाल नहीं पाएगी। इसलिए फिर व्यक्ति को लगता है कि प्रभु जी मैं तो 10 साल से माला कर रहा हूँ फिर भी ऐसे के वैसे ही हूँ, एज इट इज ही रह गया, एज इट इज पढ़कर भी, तो फिर क्या करें। तो इस प्रकार की भावना आएगी। तो इसलिए हमें ये श्रद्धा विकसित होता है साधु संगति से या श्रवण करने से, इसलिए श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वन लास्ट थिंग यही है कि श्रवण जब हम करते हैं ना, वो बीज के रूप में हमारा हृदय में आरोपित हो जाता है। जो जो बातें कही जाती है वो एक सीड फॉर्म में हमारा हृदय में आरोपित हो जाता है, देन फिर उसी से ही हमारा भक्ति वो बढ़ने लगता है। अगर आप सोचो, अगर गलत प्रकार का बीज आपने कहीं से गलत प्रकार के मार्केट दुकान से उठा लिया एंड वो बीज आपने बो दिया अपनी खेती में, देन फिर क्या आएगा, देन गलत प्रकार की पौधा आएगी, गलत प्रकार की पौधा आएगी। तो इसलिए श्रवण करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि
किन से सुन रहे हैं, किन से सुन रहे हैं और किस प्रकार की श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। बिकॉज इसी से आपकी भक्ति की, अगर आपकी श्रवण आभास है देन भक्ति लता बीज आभास वाली होगी। एंड फिर आपकी उस भक्ति आभास भक्ति लता बीज से किस प्रकार की भक्ति होगा, आभास भक्ति होगा। और आभास भक्ति करने से किस प्रकार की फल मिलेगा, उसमें तो कृष्ण प्रेम की फल नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वो तो आभास भक्ति लता है। वो आभास भक्ति लता मतलब भक्ति लता जैसा दिखता है बट भक्ति लता है नहीं, भक्ति लता है नहीं, तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसलिए तो इस बात को ध्यान रखना होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।